قربانیوں کا پولو قرار کرے. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. نہایت رحیم خدا مہربان 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 اور دھیما غصے میں صدا مہربان 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 رحم و دعوت کے کمال بھلے آئی کردہ سبنا سب کر اس کو ہے نہار مہربان مہربان مہربان. ایک بار پھر سے گائیں گے. نہایت رحیم خدا. سب اونچی آواز میں مل کے گائیے, اونچی آواز میں. نہایت رحیم خدا مہربان 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 اور دھیما غصے میں صدا مہربان مہربان مہربان. سب کاراگریاں ہے خدا مہربان مہربان مہربان. گیت گاواں تیریاں صفات مہربان مہربان مہربان. Thank you Lord Jesus. آئیے اپنے لبوں کو کھولیے, سبھی اپنے لبوں کو کھولیے اور خدا سے مانگیے کہ خدا بدا مجھ سے بولنا, میری برکت کے لیے, میری تندرستی کے لیے, میری خداوند روحانی بڑھوتی کے لیے تو مجھ سے بات کرے. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. دھنیواد ہو خداوند, دھنیواد ہو جیسس کرائسٹ. Hallelujah. تعریف ہو خداوند آج اپنے کلام کی قدرت کو نازل فرما. تیرا کلام ہمیں بچائے, ہمارے نئے راستوں کو کھولے. تیرے کلام کے وسیلے سے ہماری گواہیاں بنے, بیماریاں روگ ہمارے جیون سے گر جائے. آئیے میرے ساتھ دعا کریے, بولیے اے قدوس خداوند, میں یسوع مسیح کے نام میں یہ ایمان رکھتا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہو ایک ماسٹر پلان کے لیے, اور اسے قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یسوع مسیح کے نام میں آج کا کلام جو میں سننے جا رہا ہوں, میرا یہ بلیو ہے وہ میری لائف کو چینج کرنے کے لیے, میری بڑھوتی کے لیے, میری برکتوں کے لیے نئے راستوں کو کھولے گا. یسوع مسیح کے نام میں ایسا فضل مانگتا ہوں آج کے مقدس کلام کو سنو اور اس پر عمل کر پاؤ, یسوع مسیح کے قادر نام میں. چرچ بولے آمین. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں میں ایک بار پھر سے آپ کو خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتا ہوں. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے. غلطیوں کا خط ہے اور اس کا 4 باب اس کی 1 ورس سے. غلطیوں کا خط تھوڑا سا پہلا, غلطیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت مقدسہ. جی بھائی پرویز پڑھیے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے, گرچہ وہ سب کا مالک ہے, اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں. اگلی ورس. بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے. اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا. آمین آمین. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت رہے. آمین. بیٹھ جائیے. ہاللیلویا. ہم سبھی تیار ہیں آج کے کلام کو قبول کرنے کے لیے. آمین. بڑی یہ خوبصورت آیت مقدسہ ہے جس کو ہم نے بھائی پرویز کے وسیلے سے سنا ہے, تلاوت ہوئی اس آیت کی.
आप सुनिए इस आयत मुकद्दसा के बारे में रसूल ने किस चीज के लिए हमें उभारा, चर्च से बात की। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और क्या लिखा है गुलाम में कुछ फर्क नहीं है। बाइबल याद रखिए, जब हमें मसीही जीवन के अंदर देखती है तो बाइबल मुकद्दस फिर ये तवक्को करती है कि हम मसीह में बच्चे ना रहें। बाइबल हमसे ये तवक्को करती है हम उसमें बढ़ते जाएं, हम बलूगत तक, इर्तिका तक, नशोनुमा तक पहुंचे। मैं ये समझता हूं शैतान के लिए एक मसीह में बच्चा वो खतरा नहीं है, मसीह में एक मैच्योर आदमी शैतान के लिए खतरा है। और बाइबल के अंदर जिस हवाले को पढ़ा गया, यूं कहा गया कि एक बच्चा अगरचे वो वारिस तो है, लेकिन जब तक वो बच्चा है वो गुलाम के ही जैसा है। सोचिए, एक गुलाम को घर में, मालिक के घर में सर्वेंट क्वार्टर मिलता है, बेडरूम, खाना पीना सब कुछ उसको मिलता है, तो बच्चे के लिए भी तो ऐसा ही है। वही बच्चा अपने बाप के घर में, उसे भी बेडरूम मिलता है, खाना पीना मिलता है, लेकिन यहां इन दोनों को एक जैसा कहा गया। उसकी वजह यह है कि बाइबल कहती है वो मालिक अगरचे बच्चा है तो भी उसे इस बात की हाजत है कि उसके ऊपर कुछ मुख्तार हो, कुछ सरदार हो जो उसे टोकें, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो एक बच्चे को ये टोका टकाई चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। और बाइबल ये कहती है हम कब तक मसीह में बच्चे रहेंगे। उसने कहा अगर तुम मसीह में बच्चे हो तो तुम्हारा खुदा बड़ी चीजों का प्लान करके तो बैठा है, लेकिन वो तुम्हारी मैच्योरिटी के लिए वेट करता है कि मेरे बच्चे बालिग हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, तब जाके मैं उन्हें दूंगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, हम अपने छोटे बच्चों को कभी ड्राइविंग नहीं करने देते, हम उन्हें तिजोरी की चाबी नहीं देते, हम कोई भी कीमती चीज अपने बच्चों के हवाले नहीं करते। हम उनको देना तो चाहते हैं पर वेट करते हैं कि ये पहले मैच्योर हो जाए, इन चीजों के अहल हो जाए, हम तब ये चीजें उनको देंगे। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, हेवन की चीजें वो इन चीजों से बहुत बेहतर हैं। ये टेम्परेरी चीजें हैं, वो परमानेंट चीजें हैं। और खुदा हर एक इंसान के लिए जो चर्च में जुड़ा है उसके लिए उन चीजों का प्लान करके बैठा है, लेकिन वो वेट करता है कि मेरे बच्चे नशों से बाहर आ जाएं, वो पाप से बाहर आ जाएं, वो गलती छोड़ दें, वो खता करना छोड़ दें, वो मैच्योर हों, तब ये मैं उनके हवाले ये चीजें करूंगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम और कितना इंतजार कराएंगे उन चीजों को जो आज से 2021 साल पहले जिनकी फाउंडेशन जीसस क्राइस्ट ने डाली। क्योंकि इसी धरती पे मसीह ने कहा था मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। आज मैं कहता हूं बड़े फख्र की बात कोई फील करेगा इसके कि अगर प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो तो सेल्फी तो बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर इमरान खान आ जाए तो सोचो हम सेल्फी खींचना जरूर पसंद करेंगे। तो मैं आपको कहता हूं वहां की चीजों को सोचो, रज के सेल्फी बनाओ पर जीसस क्राइस्ट के साथ बनाओ। और बाइबल ये कहती है, उसने कहा और कितना उन चीजों को इंतजार कराओगे क्योंकि वो तो तुम्हारा वेट करती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर हम जिस्मानी एतबार से अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, ये पहले इन चीजों के काबिल तो बन जाएं। मेरा बच्चा अभी भी वो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करता, मैं कहता पुत्र थोड़ा जा होर वड्डा हो जा। आप भी ऐसे ही करते हो कि नहीं थोड़ा होर वड्डा हो जाए, सारा कुछ तेरा ही है। तो मुझे बताइए क्या हमारा खुदा ऐसा नहीं सोचता? वो भी तो यही सोचता है काश मेरे बच्चे बड़े हो जाएं। और मैं आज वो कहना चाहता हूं जिन लोगों को आज से 10 साल पहले भी मिनिस्ट्री में होना चाहिए था, वो आज भी चर्च में एक मेंबर के तौर पर ही है। जिनको यहां पर होना चाहिए था, प्रचार करते होना चाहिए था, जिनको लोगों के लिए सल्वेशन का, बरकत का और चीजों का वो रीजन बनना चाहिए था, वो आज भी एक मेंबर की शक्ल में है। बाइबल मुकद्दस याद रखो एक डिसाइपल को देखती है, वो मेंबर को नहीं देखती। क्योंकि
डिसाइपल, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा था जाओ और कौमों को, उसने कहा मेंबर ना बनाओ, क्या बनाओ? और हमारे चर्च में मेंबर बनाते हैं, ये यूपी का मेंबर है, ये भाइयों का मेंबर है, कैथलिक का, तो मेंबर सारी जिंदगी मेंबर ही रहता है। बाइबल किसी मेंबर के लिए नहीं है, बाइबल एक डिसाइपल के लिए है, क्योंकि डिसाइपल कल का टीचर होता है, वो कल का सिखाता है। मैं कई बार कह चुका हूं, मत्ती के शुरू में यीशु ने कहा आओ, मत्ती क्या कर में कहा जाओ, तो ये आने और जाने का काम है। यहाँ ये मरीदी का काम नहीं कि पीर मर गया अब उसी की मट्टी को ले लेके लोगों पर लगाओ, तो सोचो ये मरीदी का काम नहीं है। बाइबल कहती है 3.5 साल की ट्रेनिंग की मैंने तुम्हें दे दी है, अब जाओ लोगों को सल्वेशन के लिए लाओ, उनको गॉस्पेल उनको बताओ, उनको हेवन का बताओ, उनको प्रचार करो। हर एक शख्स बाइबल की निगाह में गॉस्पेल है, वो मैंने कहा मुबश्शिर है, वो प्रीचर है। हम सोचते नहीं है सिर्फ पादरी साहब का काम में। अगर वो लड़की सोचती तो वो कभी भी अपने नुमान आका के लिए वो उसको ना कहती ये काश मेरे वहां सामरिया में होता, तो वहां एक नबी है, उसने एक तरह से प्रचार किया था। और हम ये कहते नहीं सिर्फ पादरी साहब का ही काम है। मैं आज आपको कह रहा हूं यहां पर जो वर्ष हमने पढ़ी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है और उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं है। यहां पर मैं आपको बताऊं, इस हवाले में एक मालदार बाप अपने बच्चों को कुछ देना चाहता है। वो सोच के बैठा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने स्ट्रगल करके खड़ी की है ये तुम्हारी है, लेकिन कहता है नहीं बेटा, मैं अपनी तिजोरी की चाबी अभी नहीं दे सकता तुझे, अपने अहम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अथराइज नहीं करूंगा कि तू इन पर सिग्नेचर करे, या अपना पैसा मैं तुझे नहीं दूंगा कि तू ऐसी उजाड़ दे, क्योंकि कल जब तुझे समझ आएगी तो ये चीजें तेरे पास नहीं होंगी। मैं ये कहता हूं, सोचो कि 8 साल के बाद ही खुदा क्यों पक्के दांत देता है, पहले क्यों नहीं दे देता? एक बच्चे को पहले क्यों नहीं पक्के दांत देता, 8 साल के बाद क्यों देता है? उसकी वजह है कि 8 साल के बाद उसे केयर करनी आती है, ब्रश करना आता है, उसे संभालना आता है। 8 साल से अगर बचपन में ही खुदा उसे दे दे तो सोचो चॉकलेट खा खा के, ब्रश ना कर करके वो 8 साल की उम्र तक जब पहुंचेगा तो दांत होंगे ही नहीं, तो सारी जिंदगी बगैर दांतों के तो फिर वो रोटी शोटी नहीं खा पाएगा, वो कभी गोश्त नहीं खा पाएगा। ऐसा ही बोलिए। तो बाइबल ये कहती खुदा वो चीजें बाद में देता है ताकि जब तुम्हें उन्हें संभालना आ जाए, केयर करनी आ जाए, तुम उन्हें बना के रख पाओ। इसी तरह एक बच्चा अगर उसको वो चीजें दे देंगे, उन चीजों को वो जाया कर देगा। हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं, बाइबल कहती है, मैं ये कहता हूं कि वारिस और बच्चे में कुछ फर्क नहीं है, बावजूद इसके कि वो वारिस तो है, लेकिन उसने कहा उसको विरासत अभी दी नहीं जाएगी। इसलिए नहीं दी जाएगी कि उसने कहा उसका खुदा इंतजार करता है ताकि वो बालिग हो जाए। मैं ये कहता हूं 5 साल का बच्चा अगर रोटी को चोची बोले तो बड़ा मजा आता है ना? फिर 8 साल का बच्चा फिर रोटी को चोची बोले फिर भी बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर 10 साल के बाद 15 साल के बाद बोले तो फिर फिक्र पड़ जाती है कि भाई ये रोटी को रोटी क्यों नहीं बोल रहा, ये पानी को मानी की बजाय पानी क्यों नहीं बोल रहा, फिर फिक्र पड़ जाती है। फिर हम डॉक्टरों से कंसर्न करते हैं, ये अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं रहा, ये तलफ़्फ़ुज़ नहीं सही कर रहा, ये अपनी उम्र के हिसाब से नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं हम अभी भी उन्हीं चक्रों में हैं, क्योंकि अब हमें बहुत आगे हो जाना चाहिए था। और खुदा को भी फिक्र है, ये मेरा बच्चा अभी भी सिगरेट पीता है, ये मेरा बच्चा अभी भी नस्वार खाता है, ये अभी भी नशों में पड़ा हुआ है, ये अभी भी बुराई में पड़ा हुआ है, कब तक ये और टाइम लगाएगा, कितना और टाइम लगाएगा? मैंने हर वो चीज इसकी सहूलत के लिए उसे दी है। याद रखो, ये जो मीटिंग है ना, ये उसी का एक हिस्सा है जो हमारे लिए खुदा की तरफ से एक इनविटेशन है स्वर्ग के लिए। हम इसे अगर सिर्फ एक आदतन लेते गए तो ये हमारी बुरी आदत है, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं उन्हीं मीटिंग्स का एक हिस्सा है कि खुदा दावत देना चाहता है हम निकले इन चीजों से, क्योंकि ये चीजें हमें रोके बैठी हैं और हमारा ध्यान अगर इन्हीं चीजों पे रहेगा तो इनको तो फना होना है। हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? हम भी फना होंगे।
तो बाइबल के अंदर मैंने कहा यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा इंतजार कर रही थे। आइए मेरे साथ देखिए अब्रानियों का खत और उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को देखिए क्या लिखा है। 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की क्या करे, इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पिलाने की हाजत पड़ गई। बाइबल कहती है वक्त के हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए था, माहिर होना चाहिए था, उस्ताद होना चाहिए था। और यहां पर मुसन्नफ ये कहता है कि तुम्हें अभी भी इब्तदाई बातें सिखाने की हाजत है, तुम्हें अभी भी इब्तदाई असूल सिखाने की हाजत है। बाइबल के अंदर हम अब्रानियों की कलीसिया को देखते हैं, वो मिच्योर कलीसिया नहीं है। बाइबल कहती है, रसूल ने, मुसन्निफ ने उन्हें ये कहा कि तुमने रूहानी एतबार से ग्रोथ नहीं की, तुमने जिस्मानी एतबार से तो तुम बढ़ गए, पर रूहानी एतबार से तुम बच्चे के बच्चे हो। आप इमेजिन कीजिए इस बात को कि लोग अपनी उम्र में 40 साल के 50 साल के हो चुके हैं, तो मसीह में कैसे कहें, मसीह में कैसे कहें, बच्चे हैं, और अभी भी उनको फीडर पीने की हाजत है। और अभी भी देखा जाए तो इनविजिबल डायपर उनको लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है। मैं आपको सच कहता हूं, एक क्रिश्चियन जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता वो उसी हालत में है। सोचो, एक बच्चे को डायपर तब तक होता है जब तक इस बात का खतरा रहता है ये कहीं भी गड़बड़ कर देगा, ये कहीं भी शर्मिंदा कर देगा। तो हम उस पर भरोसा नहीं करते, हम उसे डायपर लगा के रखते हैं और फीडर भी उसका साथ रखते हैं, ये कहीं भी रोना शोना डाल देगा और इसे फीडर की जरूरत पड़ेगी। रसूल ने कहा तुम चर्च में आते तो हो, पर बड़े बड़े तुम्हारे हाथ में फीडर्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रोजीन पे लगा हुआ है, कोई नीडो पे लगा हुआ है, कोई किसी और चीज पे लगा हुआ है। उसने कहा तुम सिर्फ जिस्मानी एतबार से बड़े हो, रूहानी एतबार से नहीं बड़े। तुम सिर्फ अपनी फिजिकल ग्रोथ पे ध्यान करते रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे तुमने जरा भी, उसने कहा, तवज्जो नहीं की। और मैं कहता हूं ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उम्र 40 साल 50 साल हो और हाथ में फीडर हो। आप इमेजिन करो कि कितना भद्दा लगेगा, कितना भद्दा लगेगा कि 50 साल का बंदा और डायपर लगा हो। रसूल ने यहां पर यही सिखाया है कि तुम इब्तदाई बातों के अभी भी अहल हो, क्योंकि तुम पुख्ता चीजों को ले नहीं सकते। मैं सच कहता हूं, अभी भी चर्च में ऐसे लोग अभी भी बैठे हुए हैं और कई कलीसियाओं के अंदर आज भी हैं जो भी बपतिस्मे के लिए सोच रहे हैं, लवा के ना लवा, लवा के ना लवा, कई भी सोच में तौबा करूं के ना करूं, करूं के ना, और कई इसी चक्कर में हैं। और मैं कहता हूं अपना टाइम वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और कईयों के तो मुंह अभी तक नहीं खुले खुदा की स्ताइश के लिए। दुआ करा के देख लो, अभी तक उनको दुआ करनी नहीं आती। घर पे घर बनाते जाएंगे, गाड़ी पे गाड़ी लेती जाएंगे, पैसा बनाते जाएंगे, लेकिन ये फिजिकल चीजों में हम इतने, मैंने कहा हम इतने एक्साइटेड हैं, हम इतना उसमें ध्यान करते गए, हम रूहानी एतबार से क्या है बोलिए, जीरो है कि नहीं? आप सोच लो, जिसने स्कूल जाना है सुबह 5 बजे उठेगा, चलो 6 बजे उठ जाएगा, जिसने नौकरी पे जाना है 6 बजे उठ जाएगा, तो सोचो टाइम पे होगा कि नहीं? कोई बारिश उसे रोक नहीं पाएगी, कड़वी धूप उसे रोक नहीं पाएगी। और मैं कहता हूं वही आदमी अगर चर्च जाना हो तो 12, 12:30, इवन ये कि कई तो मैसेज के बीच में आते हैं, है ना? तो सोचो क्या क्या हम, उसने कहा जो कैसर का है कैसर को, तो कैसर को तो पूरा देते हैं, पूरा टाइम उसे देते। तो खुदा उसने हफ्ते में 7 दिन नहीं मांगे, हफ्ते में 1 दिन मांगा है और कहा, अब सोचो उसके लिए भी हमारे अंदर एक हर आदमी, सोचो मैं कहता हूँ प्लान रख के बैठा हुआ है, अच्छा संडे आ गया, कहीं तो मरी जाना सी संडे आ गया, कईयों ने शादी पे जाना है, कईयों ने सालगिरह पे जाना है, ओ भाई चर्च किसने आना है, तो करे हाँ पादरी आप ही है। मुझे ये बताइए, लोग ये सोचते हैं कि पादरी नू साडी लोड़ है, लोग इंज सोचते कि नहीं?
पादरी मुझे ये बताइए, पादरी नु ताड़ी लोड़ है कि तानू पादरी दी लोड़ है? बताइए। लोग सोचते हैं खुदा को हमारा पैसा चाहिए। ओ भाई, आपके पैसे को खुदा नहीं चाहिए, सबसे पहले आपके पैसे को खुदा चाहिए। और मैं कहता हूं अभी भी जाहिल और मूर्ख आदमी है जो ये सोच के बैठा है और नहीं साढ़े बगैर पादरी कुछ नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आप एक रियल मैन ऑफ गॉड के अलावा कुछ नहीं हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक मैन ऑफ गॉड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो इस चीज को समझते गए वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते गए। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए बैलेंस का के जरिए, जैसा कैसर से खुदा कहता है वैसे ही चलो, जितना टाइम उसको वैसे ही मुझे। और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर उसने कहा वक्त के ख्याल से तुम्हें माहिर हो जाना चाहिए था। अभी भी हाजत है तुम्हें बताने की, भाई टाइम की पाबंदी करो, भाई ये करो, भाई वो करो। ओ भाई, आपको और कितना टाइम लगेगा? यहां पर सुनिए, रसूल ने कहा तुम्हें सख्त गज़ा खानी चाहिए थी, अभी भी फीडर पे लगे हुए, अभी भी वही तुम दूध पे लगे हुए हो। और यहां सैकड़ों ऐसे मसीही हैं जो जिस्मानी एतबार से तो बड़े हैं, लेकिन रूहानी एतबार से अभी भी 2 महीने के बच्चे हैं और उनकी लाइफ स्टिल है, क्योंकि नशे नहीं छूट रहे, उनको अभी भी टाइट खाने की आदत है, उनको अभी भी मैंने कहा बुराई करने की आदत है, वो मिच्योर नहीं है अपनी लाइफ में। मैंने कहा शैतान के लिए एक मसीह में बच्चा वो खतरा नहीं है, मसीह में मिच्योर आदमी मसीह के लिए खतरा है। और इसीलिए वो हमारी लाइफ के अंदर मिच्योरिटी आने नहीं देता, वो हमें रोकता है, वो पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये मिच्योर हुआ ये अकेला स्वर्ग नहीं जाएगा, कईयों को लेके जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। खुदा का ये प्लान है, आप अकेले हेवन में मत जाओ, अपने घरानों के साथ। हम रात को बात कर रहे थे, राहब ने क्या उसने अकेले ही मसीह को कबूल कर लिया था, पर काम अकेले नहीं, मैं अपने पूरे खानदान समेत बचना चाहती हूँ। तू बच तो तेरा घराना क्या होगा? बोलिए, बचाया जाएगा। ये खुदा का प्लान है, आप अकेले हेवन में ना जाओ, ये खुदा चाहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ये चाहिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर जिस कदर जिस्मानी एतबार से हम बढ़ने की कोशिश करते गए, रूहानी एतबार से भी तो बढ़े, क्योंकि खुदा जिस तरह हम अपने बच्चों की फिक्र करते गए, हम भी तो किसी के बच्चे हैं कि नहीं? ये बोलिए, है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? हम भी उसके बच्चे हैं, तो वो भी तो फिक्र करता है, वो भी चाहता है मेरे बच्चे ग्रोथ करें, मेरे बच्चे बढ़े और रूहानी तौर पर बढ़े। यहां मैं आपको बताऊं, जिस्मानी एतबार से जब बच्चा डायपर नहीं छूटता उसका, जब बच्चे का फीडर नहीं छूटता, तो मैं आपको बताऊं वो गैर जिम्मेदार माना जाता है, वो कमजोर माना जाता है। और सेम ऐसा ही है, जब हमसे बुराई नहीं छूटती, हमसे खताएं नहीं छूटती, हमसे और तरह के से बुरे काम नहीं छूटते, मैं ये कह रहा हूं रूहानी एतबार से भी हम गैर जिम्मेदार और कमजोर माने जाते हैं। जबकि खुदा ये चाहता है कि हम रूहानी एतबार से बढ़े और वक्त के हिसाब से हम माहिर हो जाए। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, ये वाला हालेलुया नहीं चाहिए, बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कलाम खुदा के अंदर हम इस वर्स को देख रहे हैं। आइए एक और हवाले को मेरे साथ देखिए, बाइबल के अंदर हम इस हवाले को पढ़ते हैं। पहला क्रंथियों उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखिए, कोई भी पढ़ी ऊंची आवाज में। पहला क्रंथियों उसका 3रा चैप्टर है और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। उनसे उस तरह कलाम न कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे। आमीन, सब बोलो आमीन, आमीन। आपको पता है अब्रानियों की कलीसिया की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई? इतना चर्च में टाइम लगाने के बावजूद भी बाइबल कहती है वो रूहानी तौर पर बढ़ नहीं पाए। उनकी ग्रोथ की वजह थी गुनाह। अब्रानियों की कलीसिया की अगर आप स्टडी करके देख लो तो स्पिरिचुअल ग्रोथ को उनके गुनाह ने रोक रखा था। और आज भी ऐसा ही होता है, हम रूहानी तौर पर बढ़ नहीं पाते तो वजह हमारा गुनाह है। और वो किसी भी आदत की वजह से हो सकता है, दुआ ना करने की आदत है, चर्च ना जाने की आदत, रोजा ना रखने
रखने की आदत, नशों की आदत, बुराई की आदत, ये सब आदतें शैतान इस्तेमाल करता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो पाए, उन चीजों को बैरियर के तौर पर इस्तेमाल करता है। और मैंने कहा अब्रानियों की कलीसिया को चाहिए था कि वो वक्त के हिसाब से बढ़ते, पर वो नहीं बढ़े और अभी भी फीडर पर लगे हुए हैं। और मैंने कहा उनके ना बढ़ पाने की वजह थी उनका गुनाह। और मैं आपको बताऊं, गुनाह आज भी समाज के अंदर हमारी वैल्यू को खत्म करता है, हमारी लाइफ से पीस को खत्म करता है, रेस्ट को वो खा जाता है, हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी हेवनली ब्लेसिंग्स है ये उनको छीन लेता है, हमारी पोजीशन चली जाएगी अगर हमारी लाइफ के अंदर गुनाह है। यकीन कीजिए कि गुनाह हमारी हर चीज के अंदर जो डिवाइन स्पीड है ये उसे स्लो कर देगा। इसलिए बिली ग्राम ने कहा गुनाह धाड़ते हुए शेर बब्बर की मानद है कि किसी को फाड़ खाए। फिर उसने कहा गुनाह आसमान से गिरती हुई बिजली की मानद है कि किसी को जला डाले। फिर आकर कर बिली ग्राम ने कहा कि गुनाह एक कैंसर की मानद है, ला इलाज मर्ज के जैसे है कि किसी को भी बीमार करके मार डाले। हम उसी से समझौता करके बैठे गए। हम बाइबल से ये पढ़ते गए, साफ लिखा है कि यहां जो खत हमने पढ़ा है, ऐ भाइयों मैं तुमसे उस तरह से कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि कैसे बोलिए, जिस्मानियों से। सुनिए, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल सेंसेस हैं उसी तरह हमारी रूह के अंदर भी स्पिरिचुअल सेंसेस भी हैं। ऐसा है कि नहीं, बोलिए। हमारी बॉडी के अंदर मैंने कहा जिन्हें हम तबाही हवास कहते हैं, उसी तरह हमारी रूह के साथ भी तबाही हवास जुड़े गए, सेंसेस जुड़ी गए। और मैं ये कहता हूं हम अपने बदन की सेंसेस पे सिर्फ काम करते गए। और बाइबल ये कहती है कि अगर तुमने रूहानी सेंसेस पर भी काम किया होता तो तुम उनमें भी बड़े होते, लेकिन तुम सिर्फ जिस्मानी एतबार से ही बड़े हो। और यहां मैं आपको बताऊं, खुदावन ने ये जो अपॉर्चुनिटी आज के दिन हमारे लिए मुहैया की है, ये उसी कड़ी की एक कड़ी है जो खुदा के उस प्लान के लिए कि वो हमारी लाइफ में रिकवरी चाहता है। वो ये चाहता है हम बहाली को रिसीव करें, अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस पर काम करना शुरू करें। मुझे ये बताइए, अगर भूख नहीं लगती तो क्या बंदा बीमार नहीं माना जाता? माना जाता है कि नहीं माना जाता? तो सोचो जिन्हों दुआ दी भुख नहीं लगती, चर्च जान दी भुख नहीं लगती, बाइबल पढ़न दी भुख नहीं लगती, तो दसो बीमार है कि चंगा है? वो भी बीमार है, वो रूहानी तौर पर बीमार है, जिसने संडे के संडे नहीं। और सोचो बाइबल तो ये कहती है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि जिस मैदान जंग में हम हैं, हमारे मद्दे मुकाबल वाला 24 घंटे काम करता है और हम संडे के संडे आगे दुआ करते हैं, फ्राइडे के फ्राइडे, या कहीं तो फिर बोती कर दे ईस्टर दे ईस्टर, तो फिर क्रिसमस दे क्रिसमस, है ना? तो असल में वो मैदान जंग में है। और ये नहीं सोचते, शैतान का काम देख लो, रात को 2 बजे भी उठ के देख लो, कोई ना कोई शराब खाना खुला होगा, कोई ना कोई बदकारी का अड्डा चल रहा होगा। ओ भाई, जो हमारे खिलाफ है इसको स्विच निकाल देना। जो हमारे खिलाफ है वो 24 घंटे काम करता है, हम संडे के संडे काम करके उसे हराना चाहते हैं। उसे हराना है तो फिर काम ज्यादा करना पड़ेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा खुदा ने ये ग्रेस हमें दिया है कि हम इस ग्रेस में रह के, मैंने कहा हम सिर्फ बच्चे ना रहें बल्कि रूहानी हम बलूगत तक बढ़े, हम मैच्योर लाइफ को ले, हम अपनी लाइफ के हर सेक्शन में ग्रोथ करें। बोलो आमीन, हालेलुया। और ये ग्रेस आज आपकी लाइफ में जाए, बोलिए आमीन। आप रूहानी तौर पर बढ़ पाओ, मैंने कहा आमीन। मैंने कहा वो चीजें जो आपको रोक के बैठी गए वो आपकी लाइफ से बाय फायर चली जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरा खुदा आपको ऊंचा करे और सब रास्तों को आपकी लाइफ के लिए खोले, बोलिए आमीन। हाथ उठाकर इस ग्रेस को रिसीव कीजिए, इस ग्रेस को रिसीव कीजिए कि खुदावंद हम तुझ में बच्चे ना रखें। आमीन, सब बोलो हालेलुया। मैंने कहा खुदावंद को अपने बच्चों की फिक्र है कि वो कब तक नौकरों के जैसे रहेंगे। वो ये चाहता है तुम वारिस हो, वारसों की तरह। उसने कहा बढ़ो और कद हासिल करो। यहां पर जो ग्रंथियों की आयत हमने पढ़ी है, यहां पर 2 कैटेगरीज पर रसूल ने बात की है। उसने कहा तुम रूहानी नहीं हो, तुम क्या हो? जिस्मानी। पहली कैटेगरीज के वो लोग हैं यहां पर जिनको
गया। और याद रखिए स्पिरिचुअल लोग वो हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस पे भी काम किया है, वो अपने बातन पे भी वह काम करने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ अपने जिस्म को ही बढ़ाने में काम नहीं किया, बल्कि अपनी दुआया लाइफ पर, अपनी होली लाइफ पर भी काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर दो ऐसे परिवार हैं, दो ऐसे खानदान हैं। एक है याकूब का परिवार और दूसरा यसी का परिवार। और आपको पता है इन दोनों खानदानों के बीच में छोटे बच्चे बाइबल कहती है सिलेक्ट किए गए। तो बड़े बच्चों को क्या हुआ, हालांकि वो तो बड़े थे, उनसे ज्यादा उम्र में, तजर्बे में उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी थी। बाइबल के अंदर अगर आप यूसुफ की फैमिली को पढ़ लीजिए तो यूसुफ 17 साल का था जब खुदा उससे बात करने लगा है, जब खुदा ने उसे ये कहा कि आने वाले टाइम में तुझे मैं बहुत ऊंचा करने वाला हूं। सोचो उसके बड़े भाई, बाइबल कहती है वो रूहानी तौर पर नहीं बढ़ पाए थे, उन्होंने कभी शायद दुआ की हो, शायद कभी वो चर्च गए हो, शायद कभी उन्होंने कोई कुर्बानी चढ़ाई हो। अगर सोचो खुदा ध्यान कर रहा है, बाइबल के अंदर पुराना एहदनामा पढ़ के देख लीजिए, जितना पेलोठे को खुदा ऑनर करता है छोटों को कोई नहीं करता। ऐसा है कि नहीं? बाइबल पुराने एहदनामे में पेलोठे को तरजीह देती है, लेकिन इन दोनों खानदानों के बीच में देख लीजिए खुदा ने तरतीब ही बदल दी। खुदा ने कहा जो डिजर्व करता है वो नहीं लिया जाएगा, जो फाइट करता है वो लिया जाएगा। इसलिए कि लाइफ हमें वो नहीं देती जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, लाइफ हमें वो देती है जिसके लिए हम फाइट करते हैं। बोलो आमीन। तो यूसुफ ने फाइट की, और बाइबल कहती जो बड़े थे वो डिजर्व तो करते थे, लेकिन मैं कहता हूं वो कभी भी इस चीज को समझ नहीं पाए। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर बढ़ पाए, रूहानी तौर पर बढ़ ना पाए। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई, मैं ये कहता हूं खुदा को फिर वही नजर आता है जिसकी सीवी पूरी हो। आमीन। मैंने कहा जिसकी सीवी चमके। रात को भी भाई अजी से बात ये हो रही थी कि चलो वो बड़ी लंबी बात है, लेकिन यही बात हो रही थी कि जब आखिर में सिलेक्शन की बारी आती है तो फिर वही जिसके सारे काम पूरे हो उसको सिलेक्ट किया जाता है। और दाऊद की फैमिली में पढ़ के देख लीजिए, बाइबल कहती है उसको तो बुलाया ही नहीं गया था। यसी ने सिर्फ अपने बड़े बड़े बच्चों को बुलाया था। अभी जनाब सम्मा वगैरह 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 सारे फेल हो गए, सब रिजेक्ट कर दिए गए। तो बगैर पेपर दिए कोई फेल किया जाता है? बोलिए नहीं होता। पेपर देता है तो फेल होता है। तो सोचो एक बड़ा बच्चा आया, सैमुएल ने चाहा यही होगा, बाइबल कहती है वो फेल हो गया। तो क्यों फेल हुआ? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा के साथ रेगुलर चलने में नहीं है। खुदा ने कहा फेल, अगला आया फेल, अगला आया फेल। आखिरकार सारे बच्चे खत्म हुए। सवाल पैदा हुआ यहां तो जितने थे वो सारे खत्म हो गए, तो क्या कोई और है ऐसा है जो अपने ही घर में भूला हुआ है, रिजेक्शन का मारा हुआ है? उसने कहा एक है जिसको मैंने बुलाया ही नहीं है। तो कहता बुलाओ नो। और बाइबल में लिखा है वो आदमी, वो बच्चा 17 या 16 टीन एज का वो बच्चा था, 16-17 साल की उम्र में। सोचो वो ज्यादा वक्त मेडिटेशन में, जंगलों में गुजारने में और जानवरों के साथ और जंगलों में रहने में गुजारता है। उसके बाप और भाइयों ने कभी भी उसको वो जगह नहीं दी परिवार के अंदर जिसके लिए वो हकदार था। एक भूला हुआ, एक घर का टूटा हुआ आदमी, बाइबल कहती खुदा ने उसे ऊंचा किया। हालेलुया। याद रखिए जब हम रिजेक्ट किए जाते हैं तभी सेलेक्ट किए जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है इन दोनों खानदानों में से बड़े बच्चों ने सिर्फ अपने, मैंने कहा, फिजिकल सेंसेस पे वर्क किया, स्पिरिचुअल सेंसेस पे वर्क नहीं किया। तो जो समझते थे कि हमने कल अपने फ्यूचर को चेंज करना है, जो आज है हम कल वो ना रहे, तो आज का बोया कल काम आता है, आज का फैसला कल लाइफ को ऊंचा करता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ के देख लीजिए, खुदा ने उनके फैसलों को देखा, उनकी लाइफ को देखा। दाऊद, बाइबल कहती है छोटी उम्र में खुदा की खुशनुदी हासिल कर चुका था। पूरी बाइबल के अंदर पढ़ के देख लो जो अनाउंसमेंट दाऊद के ऊपर खुदा ने की कि वो मेरे दिल के मुताबिक है, किसी प्रॉफिट के ऊपर नहीं की। बाइबल के अंदर ये पढ़ के देख लो जितना ऊंचा खुदा ने यूसुफ को किया। आप पढ़ के देख लीजिए इन लोगों की लाइफ का कि खुदा ने कैसा उनको सरप्राइज किया। बोलिए आमीन। हालेलुया। सो यहां पर ये चर्च की हालत है। उसने कहा मैंने जैसे रूहानियों को प्रचार करना चाहिए था वो नहीं किया मैंने तुम्हें। तो क्यों नहीं किया? उसने कहा क्योंकि अभी तुम मसीह में बच्चे हो। जब चर्च आते हो
तुम्हें फीडर चाहिए, जब चर्च आते हो तुम्हें दूध चाहिए, तुम्हें उसने कहा इब्तदाई बातें चाहिए। और मैं आपको कहता हूं चर्च मैं कहता हूं सिर्फ आप इसे एक हॉस्पिटल के जैसे मत सोचें कि बीमार है तो चर्च आ गए, या इसे इमरजेंसी की जगह मत मानिए कि अगर कोई केस पड़ गया, कोई परेशानी पड़ गई तो फिर चर्च आइए। मैं अक्सर कहता हूं एक क्रिश्चियन कब दुआ करता है, बोलो कर्ज में, गर्ज में और मर्ज में, कर्ज में, गर्ज में और मर्ज में, ये 3 हालतें जब वो दुआ करता है और इन्हीं हालतों में वो चर्च आते गए। मैं जिस चर्च को मानता हूं, चर्च एक यूनिवर्सिटी है, याद रखिए, हमें लेक्चर मिलते गए यहां पर, और ये लेक्चर्स हमारा फ्यूचर सेम नहीं छोड़ते। आमीन। हम उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ के अपना फ्यूचर ब्राइट करते गए जो कल फना हो जाता है। यहां पर हम जिस चर्च को मानते गए ये एक यूनिवर्सिटी है और घंटों लेक्चर चलने चाहिए, घंटों, क्योंकि यही तो हमारा फ्यूचर बनाते गए। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक बच्चा, मैं कहता हूं आधी से ज्यादा, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा कितनी रोटी खाता होगा? दोनों वाले है ना, या वो बड़े वाला आधी से ज्यादा नहीं खाता होगा? तो बड़ा बंदा कितना खाता है? कई तो 2-2, 3-3, 4-4 भी खा लेते हैं। पंजाब के तो मैं कहता हूं 10-10 भी खा जाते हैं, है ना। तो सोचो अगर हम चर्च में आए और ये सोचा पास्टर जी बस 20 मिनट तो उत्ते नहीं मैसेज होना चाहिए था, तो साड़ी हालत तो बच्चे की तरह जो 2 वाले खाता है ना। तो सोचो अगर हम मिच्योर हो गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर घड़ी छूट जाती है, क्योंकि पता है ये चीजें मेरी लाइफ को बनाएंगी, ये चीजें मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में हेल्प देंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। सो बाइबल ये कहती है, मैंने जैसे रूहानियों से कलाम करता हूं, रसूल ने कहा ये तुमसे नहीं कर पाया, तुम बच्चे हो। पहली कैटेगरी के वो मैंने कहा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस पे भी काम किया और वो बढ़ पाए, अब वो ठोस गजा खाने लगे हैं। और दूसरी कैटेगरीज के वो हैं, उसने कहा कि तुम सिर्फ फिजिकल सेंसेस में बड़े हो, रूहानी तौर पर तुम नहीं बढ़े, क्योंकि अभी भी मैंने कहा, उसने कहा तुम्हें पाप करने की आदत है बावजूद के चर्च के मेंबर हो। मैं अफसोस से कहता हूं आज भी कई चर्चेस के अंदर होता है, लोग शराब बेच रहे और उनको चर्च मेंबरशिप दी हुई है, लोग जादू टूना करते गए और उनको चर्च मेंबरशिप दी हुई है, लोग वहां पर शियों के जाके पीटते गए और फखर से कहा जाता है नहीं जी ऐसी फलाने दे मेंबर आ। और मैं ये कहता हूं ऐसे लोगों को तो चर्च में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चर्च, बाइबल अगर चर्च में, अगर कलीसिया का यूनानी में पढ़ के देख लीजिए तो वहां पर उसका मतलब है चुने हुए लोग। तो ये चुने हुए लोग हैं जिनसे अभी भी दुनिया निकली नहीं बाहर, अभी भी पैसे की भूख है, अभी भी समाज के अंदर उनकी जान अटकी हुई है। बाइबल कहती है जिस चर्च को खुदा देखता है वो चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए वो लोग जो खुदा की मर्जी को समझते हैं कि मुझे स्टिल लाइफ में नहीं जीना, मुझे बढ़ना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो क्रिश्चियन लाइफ मैंने कहा बढ़ने का नाम है, एक जगह पे रहने का नाम नहीं है। आप बाइबल के अंदर पढ़ लो कि लाजर मर गया और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने नया जीवन तो उसे दे दिया, लेकिन अभी भी पट्टियों के अंदर लिपटा हुआ कब्र के पास खड़ा हुआ है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं चर्च में, मैंने कहा जो नया तो जीवन पा चुके हैं लेकिन अभी भी पुरानी आदतों की पट्टियों में वो जकड़े हुए हैं, और हाजत है इस बात की कोई उनकी पट्टियों को उतारे और कहे लाजर अब तू जी उठा है, अब तू स्टिल नहीं, तू चल फिर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आज कईयों की मैंने कहा ऐसी पट्टियों को उतरने की जरूरत है। बोलो आमीन, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हम लाजर के जैसे ना हो, जीवन तो पा लें लेकिन स्टिल वहीं पे रहे। हम मैंने कहा बढ़ने वाले हो। सो बाइबल ये कहती है, बाइबल कहती है जिन्होंने सालों अपना वक्त चर्च में गुजार दिया, अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया, अभी भी तौबा नहीं की, अभी भी नशे जारी हैं, अभी भी वो बुरा काम जारी है, और क्या वो सिर्फ आदतन आते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि ये एक मास्टर प्लान है कि हमारी लाइफ यहां पर चेंज हो जाए और हम खुदा के घर में हो। हालेलुया। सो पौलुस रसूल जब कुरिन्थस में पहली दफा आया, ये उसका पहला टूर था जो हमने पढ़ा, मिशनरी विजिट है, तो उसने कहा कलाम मुकद्दस की मैंने तुम्हें इब्तदाई बातों को वो दूध कहता है। उसने कहा मैंने तुम्हें मिल्क दिया, क्योंकि चाहिए था कि तुम सॉलिड फूड खाते, तुम गहरी बातों को लेते, लेकिन उसकी तुम में कैपेसिटी नहीं है, तुम अभी भी अपने स्टमक पे काम नहीं कर पाए और बच्चों के जैसे हो।
क्योंकि वो लोग अभी भी, मैंने कहा, इस लायक ना थे कि वो कलाम की गहरी बातों को सुनते। बाइबल ये कहती है हम अगर क्रिश्चियन लाइफ में हैं तो ये याद रखो हमारे लिए बड़े फायदे की बात है। इस प्रिविलेज को ऑनर कीजिए, इसे इज्जत की निगाह से देखिए कि खुदा ने हमें मसीही खानदान के अंदर पैदा किया। ये शर्मिंदगी की बात नहीं, ये फख्र और घमंड की बात है कि मैं ऐसे घराने में पैदा हूं जिसके लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और ताअबद जिंदा रहेंगे और शैतान का तमाशा बनाते रहेंगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इससे इस्तिफादा लीजिए, मैंने कहा। इसलिए बाइबल कहती है कि मशरिक से लोग आकर, उसने कहा, शरीक हो जाएंगे और घर के बेटे अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। मैं ये कहता हूं ये कितने दुख की बात है कि जिस चर्च में लोग आकर प्रचार सुनते हो, बाहर के लोग सल्वेशन पा जाएं और मेंबर वही के वही रहें, क्योंकि उनको समझ नहीं आई कि ये मेंबरशिप का काम नहीं है, ये डिसाइपलशिप का काम है। और शागिर्द फॉलो करते अपने टीचर को और अपने जीसस को। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ जाहिर है कि ये कलीसिया जिस्मानी एतबार से बरगश्ता या बिगड़े हुए जज्बात और ख्यालात के मुतहत जी रही थी। वो चर्च के मेंबर तो हैं, संडे के संडे आकर बड़ा जोशीला वो प्रचार सुनते हैं, वो वर्शिप भी करते हैं, वो और सब कुछ जो स्पिरिचुअल काम है वो संडे के संडे ही प्रैक्टिस करते हैं। इसी संडे आके एक्सरसाइज करते हैं। मसीही लाइफ संडे के संडे एक्सरसाइज करने का नाम है कि डेली एक्सरसाइज करने का नाम है? इसे डेली एक्सरसाइज कीजिए। डेली सल्वेशन मेंटेन तभी होती है जब डेली एक्सरसाइज किया जाए। मैं कहता हूं हमारी दुआ मसीही लाइफ में एक ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन ना लें तो डेड हो जाएंगे। सेम ऐसा ही है, अगर हम रूहानी एतबार से, मैं ये कहता हूं, बढ़ना चाहते हैं तो दुआ एक ऑक्सीजन का काम करती है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो आज भी चर्चिस में मैंने कैसी कैटेगरीज के लोग मौजूद है जो अभी भी खुदा के लिए उस तौर से काम नहीं कर पाते, उनके मुंह नहीं खुले, वो अभी भी रुके हैं। और बाइबल ये कहती है कि उनको बढ़ना चाहिए, उनका दूध छूट जाना चाहिए। अब उम्र में वो बड़े हैं तो इनका डायपर उतरना चाहिए, फीडर उतरना चाहिए, उन्हें मैच्योर होना चाहिए। आइए दूसरी वर्ष को पढ़ेंगे, इसी का पहला ग्रंथियो उसका 3 बाब उसकी दूसरी वर्ष को देखिए क्या लिखा है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। हाँ, रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को इब्तदाई बातों का क्या पिलाया है? दूध। और कहा कि तुम मसीही लाइफ के हिसाब से नहीं बड़े हो। और उसने कहा तुम्हें अभी भी उन चीजों की बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें अगर मैं दूं तो तुम उन्हें वेस्ट कर दोगे, तुम्हारा पेट चल जाएगा, तुम हजम नहीं कर पाओगे, पचा नहीं पाओगे। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम सिर्फ जिस्मानी एतबार से बने और रूहानी एतबार से ना बने। आज सोचो, खुदा ये चाहता है कि हम लोगों को दिखा पाए। क्या दिखा पाए? अपना खुदा। तो कैसे दिखा पाएंगे? अपने जीवन से, अपने किरदार से, अपनी लाइफ से। क्योंकि याद रखो दुआ इतना काम नहीं करती जितना किरदार काम करता है। क्योंकि यीशु ने 30 साल के बाद जब वो खिदमत में आए थे तो 30 साल तक वो क्या करते रहे थे? करैक्टर के ऊपर काम। और करैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, जब मिनिस्ट्री के लिए निकले हैं तो सोचो वो चर्च खाली हो गए थे, लोग गली मोहल्लों में उनके साथ मैदानों में मीटिंग्स करने के लिए तैयार हैं। सेम रसूलों का भी ऐसा ही था, अपने करैक्टर के ऊपर वर्क किया और बाइबल कहती है समाज बदल के रख दिया। सेम ऐसा ही है, यहां पर बाइबल ये कहती है कि तुम उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हें, उसने कहा ठोस गज़ा नहीं दी। और यहां बाइबल कहती है जिस तरह हम बॉडी में इंप्रूवमेंट करते गए, स्पिरिट में भी तो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ये हम पर फर्ज है और ये हम पर डिपेंड करता है। ना खुदा किसी को बढ़ाता है और ना खुदा किसी को पीछे करता है। मुझे बताइए, दाऊद को आगे किया था, उसके भाइयों को जान पूछ के पीछे किया? बताइए, ऐसा था? यूसुफ को खुद आगे किया, उसके भाइयों को पीछे कर दिया? जब सिलेक्शन की बारी आती है तो खुदा उनकी तैयारी को देखता है, खुदा उनकी दुआया लाइफ को देखता है, खुदा उनकी पाकीज़गी को देखता है।
आज सोचो भाई अशरफ, खुदा आपको 20 साल का आगे का टाइम आपको दिखा दे कि अगर आप पाप में हुए तो तब कहां होंगे, तो अगर अच्छे काम किए तो तब कहां पर होंगे, तो मुझे बताइए फिर आप गुनाह करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर नहीं करेंगे, तो फिर ईमान रखने की जगह भी नहीं है। ईमान रखने की जगह भी नहीं है, क्योंकि आने वाला मंजर देख लिया। तो ईमान रखने की जगह ये है, हमने स्वर्ग नहीं देखा पर हम उसमें चल रहे गए। खुदा को किसने देखा है तो यकीन नहीं करते कि वो है, तो ये ईमान है। इसलिए मसीह ने उस तूमा से कहा था, मुबारक है वो जो अनदेखे खुदा पर, अनदेखे चीजें देख कर ईमान लाना। खुदा मेरिकल्स करे फिर मैं मनाऊंगा। वो कहते सलीब से उतर, हम तुझ पर ईमान लाएंगे। कहता है जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो मसीह को क्या पड़ा था, उनको दिखा देता एक चमत्कार, उतरता, हजारों लाखों लोग बदल जाते। पर उसने कहा मेरा तरीकाकार इंसान से अलग है। अगर किसी को सल्वेशन पानी है, हीलिंग लेनी है, तो पहले ईमान लाना पड़ेगा। ये उसका तरीकाकार है। इंसान का तरीकाकार क्या है? पहले दिखा, फिर सोचते हैं अच्छा मैं टाइट भी दूंगा, अच्छा मेरी जॉब लग जाए, फिर मैं बपतिस्मा भी ले लूंगा, अच्छा उत्ते शादी करा दे, फिर ये कर दूंगा, फिर वो। तो ये कंडीशंस बांध कर जब हम चलते हैं, क्या वो कंडीशंस का खुदा है? दाऊद ने, मुझे बताओ, साउल की बेटी के लिए लड़ाई लड़ी थी कि जब साउल ने कहा जो जाति जूलियत को मारेगा मैं उसे अपनी बेटी दे दूंगा, तो दाऊद ने कहा पाई ये अपॉर्चुनिटी नहीं फिर कदी लबड़ी, तो चलो किन्ने फखर दी गल, प्राइम मिनिस्टर दी कुड़ी मिल जाएगी। क्या इसलिए लड़ा वो? तो चर्च में इसीलिए लड़ते हैं, 40-40 रोजे चल रहे हैं। वो आपस में तो नहीं बताते पर खुदा को बता देते हैं, थे करनी होते करनी, है ना? तो सोचो वो नहीं हुआ तो रोजे भी गए, दुआएं लाई भी गई, सब कुछ गया। उसने कहा ये होता कौन है यहोवा की कौमों की फैजियत करे, फसीयत करे? ये होता कौन है खुदा की कौमों की हकारत करे? वो खुदा की गैरत के लिए लड़ा था। बोलो आमीन। वो खुदा में लड़ा था, इसलिए पहले ही पत्थर उसे ढेर कर गया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा हम फितरी एतबार से, मैंने कहता हूं जो बच्चा नहीं बढ़ पाता, हम ये समझते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के एल नहीं है, कभी भी कुछ कर देगा गड़बड़, शर्मिंदा कर देगा, तो हम उसका बंदोबस्त साथ रखते गए। मुझे बताइए क्या खुदा भी हमारे लिए ऐसे ही सोचे? इन्हें थे लाजमी झूठ बोलना ही बोलना है, इन्हें लाजमी थे चोरी करनी है, तो मिचोर कब होंगे बताइए? बाइबल ये कहती है तुम्हें पुख्ता होना चाहिए, तुम्हें हर चीज के एतबार से उन चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 16वां चैप्टर है, उसकी 12वीं वर्ष को पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां चैप्टर और उसकी 12वीं वर्ष को देखो क्या लिखा है। 16वां चैप्टर 16वां चैप्टर। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। सुनिए, यहाँ पर 12वीं वर्ष में पढ़ा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनकी क्या नहीं कर सकते। किन से बात की जा रही है? शागिर्दों से। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं जैसे ही मसीह खुदावन ने उन 12 को अपने साथ लिया तो मसीह उनको भेद तो देना चाहते हैं, मसीह उनको बहुत बड़े आसमान के बादशाही के गहरे भेद सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये भी बच्चे हैं, ये मैच्योर नहीं है, इनको अगर अब मैं दे दूंगा तो ये चीजें ये जाया कर देंगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं तालीम देने का यीशु मसीह का जो असूल था वो ये था, पहले सीखने के अमल में कुछ तरक्की हो, बाद में आला सच्चाइयां पेश की जाए। अगर पहले ही आला सच्चाइयां पेश कर दी जाएंगी तो वो जाया हो जाएंगी और वो असर नहीं रखेंगी। इसलिए बाइबल कहती है, मसीह ने कहा अपने डिसाइपल से कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा तो सोचता हूं कि मैं तुम्हें भेद दूं और तुम्हें माहिर बनाओ और तुम्हें ऐसा बनाओ कि शैतान के लिए बहुत बड़ा खतरा बनो तुम, लेकिन मुझे अभी इस बात की समझ है कि मैं ये चीजें तुम्हें वक्त से पहले नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं दे सकता? तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है अभी, तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो तुम जाया कर दोगे। मुझे ये बताइए, क्या रसूल जब तक मसीह के साथ रहे उनकी यही हालत रही? वो मिचोर नहीं हुए, वो गलतियां ही करते रहे?
बाइबल कहती है, अगली वर्ष क्या कहती है, मत्ती की अंजील 13वां बाब उसकी 10वीं से हम 11वीं वर्ष को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 13वां चैप्टर उसकी 10वीं और उसकी 11वीं वर्ष में शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की क्या दी गई है समझ। तो तब मसीह ने क्या कहा था, तुम में अभी ऐसी समझ नहीं है, तुम अभी वो बच्चे हो, तुम्हारा अभी तरबीती वो प्रोसेस चल रहा है, तुम अभी सीखने के अमल में हो और तुम इन चीजों को पचा नहीं पाओगे। लेकिन बाइबल कहती है एक वो भी टाइम आया जो उन्होंने आज की चर्चिस को सिखाया कि तुम स्टिल एक जगह पे मत रहो। एक वो टाइम है जब मसीह ने कहा तुम इन चीजों को ले नहीं सकते अभी। बाद में मसीह ने कहा औरों को तो दूध में पिलाता हूं क्योंकि इसलिए कि तुम्हें ठोस चीजों को समझने की, आसमान की बादशाही की वो भेदों को समझने का वो अक्ल चाउर तुम्हें दी गई है। और बाइबल कहती है इसका मतलब है डे बाय डे उन लोगों ने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट की थी कि नहीं की? बोलिए आमीन। इसलिए वो कल को बाइबल कहती है ऐसे निकले कि जो कोई जिधर जिधर गया समाज को हिला के रख दिया। यहां तक कि उनके ऊपर ऐसे फतवे जारी हुए कि ये गुमराह करने वाले हैं, ये बागी करने वाले हैं, इन्होंने हलचल पैदा कर दी है। लोगों को रीत रिवाज ऐसा बताते थे जो मूसवी शरीयत के खिलाफ है, लेकिन कलाम ये कहता है लोग टूट रहे थे, लोग छूट रहे थे, शैतान के प्लान फेल हो रहे थे और खुदा का काम डे बाय डे बढ़ रहा था। बोलिए आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए कलाम खुदा के अंदर हम ये सीखते हैं हमें अब टाइम के हिसाब से सॉलिड फूड खाना चाहिए, गहरी बातें सीखनी चाहिए। लेकिन ये हमारा मसीह में चलना साबित करता है कि तुम बच्चे हो के मैच्योर हो चुके हो। अगर एक ही चीज तुम्हें बार बार बताई जा रही है फिर तुम मैच्योर नहीं हो, फिर तुम अब नॉर्मल हो। इसलिए अगर नॉर्मल होते तो तुम्हें समझ आ जाती कि नहीं भाई ये चीजें नहीं करनी है। सो बाइबल के अंदर हम जिस शख्स का पढ़ रहे थे इसने पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 3 वर्ष में क्या कहा, आइए पढ़िए इस वर्ष को। पहला कुरिन्थियों 3 चैप्टर उसकी 3 वर्ष से देखो। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी हम पढ़ेंगे 2 और 3 वर्ष को। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी भी क्या लिखा है, अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि तुम में हसद और झगड़ा है। तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले? यहां पर बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए, कहा मैंने तुम्हें दूध पिलाया और उसकी वजह यह है उसने कहा तुम सॉलिड फूड खाने के हकदार नहीं, इसलिए उसने कहा यू आर स्टिल फॉर फ्लैशली, कि तुम, उसने कहा जिस्मानी हो। बाइबल कहती है मैच्योरिटी, याद रखो, ये हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की फेवर को लाती है, खुदा की सिलेक्शन को लाती है, खुदा की ब्लेसिंग्स को लाती है। और मैच्योरिटी ये एक ऐसा पहलू है जिसपे हम सारी जिंदगी काम करते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मैंने कहा पूरी लाइफ वर्क करना पड़ता है। जब हमने वर्क ठंडा किया तो ये मैच्योरिटी जाएगी हाथ से और फिर पाप की गुंजाइश पैदा होगी। बाइबल कहती है अभी तक तुम, उसने कहा, इसलिए दूध पीने के अहल हो कि तुम जिस्मानी हो। आइए एक वर्ष पढ़िए, रोमियो 8 बाब की 6 वर्ष को देखो मेरे साथ। रोमियो 8वां बाब उसकी 6ठी वर्ष में पिछली वर्ष क्या कह रही है कि तुम क्या हो? बोलो जिस्मानी हो। और यहां पर ये लिखा है रोमियो 8 बाब की 6 वर्ष में लिखा है जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान है। बाइबल कहती है नियत के लिए इंग्लिश लफ्ज माइंड आया है यहां पे, कि जिस्मानी दिमाग क्या है? मौत। रूहानी नियत क्या है? जिंदगी और पीस। बाइबल के अंदर इन दोनों का तकाबल किया गया, इनको आपस में मुकाबले में पेश किया गया है। मुकाबला किन किन चीजों का है? स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ। उसने कहा फिजिकल लाइफ ये तुम्हारी मौत का वजह बनेगी, स्पिरिचुअल लाइफ उसने कहा
یہ تمہارے لیے بائبل کہتی ہے زندگی اور اطمینان پیدا کرے گی. یاد رکھیے ہر چیز کا ریزلٹ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے نتائج نکلتے ہیں. اور بائبل یہ کہتی ہے، یہ رومیو 8 باب کی 6 ورس نہ صرف جسمانی اور روحانی زندگی کی بات کرتی ہے بلکہ ان کے نتائج کی بھی بات کرتی ہے. اور اس نے کہا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جسمانی لائف میں جیو گے آخر میں موت تمہارا حصہ بنے گی. اور میں کہتا ہوں افسوس اس آدمی پر جو جسم کی موت مر گیا، جسمانی موت مر گیا، کیونکہ وہ ایک موت میں دونوں موتیں مر گیا. ایسا ہی ہے، ایک موت میں دونوں موتیں مر گیا. اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو ایک موت تو مرا پر اگلی جیون کو اس نے لے لیا. کیونکہ یسوع مسیح نے صاف کہا تھا کہ تم مر تو جاؤ گے پر ہمیشہ تک زندہ رہو گے. ہم جسمانی اعتبار سے تو مریں گے پر روحانی اعتبار سے زندہ رہیں گے اور عبدالآباد زندہ رہیں گے. سب بولیے ہاللیلویا. اس لیے میں نے کہا بائبل مقدس کے اندر یہ رسول نے کہا تم ابھی بھی اس لیے دودھ پیتے ہو کہ تم جسمانی ہو، کیونکہ تمہیں کنارے پہ رہنے کی اس نے کہا خواہش رہتی ہے. اور کبھی تم دنیا میں آ گئے اور کبھی کنارے پہ، اور کبھی دنیا میں اور کبھی کنارے پہ. تو زیادہ تر میں کہتا ہوں کرسچن وہی گئے جو کنارے پہ رہتے گئے. کبھی دنیا کے ساتھ پی پلا لیا، کبھی دنیا کے ساتھ شادی بیاہ نچن گانا کر لیا، اور کبھی آ کے چرچ میں ورشپ کر لی. یہ لوگ ساری زندگی کنارے پہ، اور کنارے والے سوائے ڈڈو مچھیاں دے اور کچھ نہیں لیندے. ایسا ہی ہے. تو بڑی چیزیں گہرے میں ہے. اس لیے مسیح نے کہا تھا اپنی کشتی کو ذرا گہرے میں لے جا. اور بائبل کہتی اوور فلو بلیسنگز، ان کے جال پھٹنے لگے. آج بھی بائبل یہ کہتی ہے جس کرسچن کو کنارے پہ رہنا ہے وہ چھوٹی چیزوں کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرے گا، لیکن اگر اوور فلو بزنس، اوور فلو بلیسنگز کو انجوائے کرنا، ایکسپیرینس کرنا ہے، اس نے کہا کنارے کو چھوڑو اور ڈیپ میں جاؤ. بولو آمین، ہاللیلویا. بائبل یہ کہتی ہے، اس نے کہا ان کے نتائج سامنے ہیں. جو جسم میں چلے گا مر جائے گا، جو روح میں چلے گا یہاں پر لکھا ہے وہ زندگی بھی پائے گا اور اطمینان، لائف اور پیس. لائف میں پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ ہو، لائف ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ کون کھائے گا؟ کون کھائے گا اسے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر آپ اس کا سلیمان کا پڑھ کے دیکھ لو، وہ بار بار کہتا ہے سب کچھ بیکار ہے، ہوا کی چران ہے. اگر میرے جیسا آپ کے جیسا کوئی غریب کہتا تو ہم کہتے یہ تے وہی گل ہوگی نا جی، انگور توڑے نہیں جاندے تے کہندی کھٹے ہے نا. اگر میں کہتا روپیہ بیکار چیز ہے، پیسہ اور دنیا کی چیزیں بیکار چیزیں، تو آپ بولو گے اچھا ٹوٹ دے نہیں نا، کہنے کیا دنیا کھٹی ہے. تو کون کہہ رہا ہے؟ بولو سلیمان. اور ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، اس کے جیسا راجہ ہوا ہی کوئی نہیں. بائبل کہتی ہے سونے کے برتن، بائبل کہتی ہے اتنا سونا اسرائیل کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھا. آپ پہلا اور دوسرا چیپٹر وائس کا پڑھ کے دیکھ لو. اس نے کہا میں نے سوچا نوکر چاکر بہت ہو تو میں نے نوکروں کو خریدا. اس نے کہا میں نے سوچا باغ بگیچے لگاؤں اور اس میں خوشی مل جائے تو کہتا میں نے وہ کرنا شروع کر دیا اور میری خوشی جاتی رہی. پھر اس نے سوچا میں اپنے محل میں گانے بجانے والوں کو رکھوں تو شاید اس سے خوشی آ جائے. اس نے کہا یہ بھی کیا. اس نے سوچا کہ شاید اور شادیاں کروں تو خوشی آ جائے. اس نے کہا یہ سب کر لیا میں نے. بائبل میں پڑھ کے دیکھ لو، اس جیسا پیسے والا بندہ تھا ہی نہیں، لیکن آخر میں سب کچھ کر کے کہتا ہے سب بیکار ہے، کیونکہ وہ پیس ہی نہیں میری لائف میں. شادیاں کی وہ جوائے ہی نہیں لائف میں. میں نے محل بنائے، میری لائف میں وہ پیس ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پیس؟ بائبل کہتی خدا اس سے الگ ہو چکا تھا. بائبل کہتی خدا اس کو چھوڑ چکا تھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. کیونکہ انیہ جاتیاں غیر اقوام کے دیوی دیوتاؤں کو پوچھ کر پیسہ آیا بھی تو کیا آیا، لائف سے ریسٹ تو گیا. میں نے کہا اور طرح کی بلیسنگز ان کی وجہ سے لائف میں آئیں پر لائف چلی گئی تو کیا پایا ہم نے؟ آج بھی ایسا ہی ہے، ہمیں ان چیزوں کی چمک مارتی ہے. بائبل یہ کہتی ہے آسمان کی چیزوں کی تم تلاش کرو. اس نے کہا یہ سب کچھ پیچھے لگ کے ملے گا، یہ سب کچھ تمہیں دیا جائے گا.
शैतान जानता है, मैंने कहा एक मेच्योर क्रिश्चियन उसे पता है मुझे पैसा नहीं, मुझे खुदा चाहिए, और एक बच्चा उसे पता है मुझे पैसा चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो हमारी लाइफ के अंदर ऐसी हरकतें आने देता है, ऐसी आदतें आने देता है, ऐसे पाप को सेट करके रखता है। सारी जिंदगी लड़ते रहे, ना नशे छूटे, ना गर्लफ्रेंड छूटे, ना बॉयफ्रेंड छूटे, ना गलत देखना, ना लड़ना, ना झगड़ना, और तरह के पाप ना छूटे हमसे। उसे पता है ये मैच्योर हुआ तो ये हेवन में जाएगा, तो ये रहे, ये अब नॉर्मल रहे, ये बच्चा रहे, ताकि चर्च भी जाए और दुआ भी करे, कभी कभी पाकीशा भी ले ले, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आपको एटम बम बनना है कि शुरली बनना है? बोलिए क्या करना है? वो एटम बम बनो, सही में उसकी लंका को, राज को गिरा के रख दो। एटम बम बनना है तो उसके लिए पावर चाहिए, शुरली बनना है 2-4 सेकंड, बड़ा धमाका, बाद में वो गई। ऐसा है कि नहीं? तो फिजिकल लाइफ एक शुरली बनने की जैसा है। सच्ची में कई बार ऐसा सोचते हैं हम मसीह में हैं, गरीब हैं, दूसरी कौमें मसीह में नहीं है, कितना पैसा उनके पास। एक बच्चे ने कहा बाप मुझे गुड्डी बहुत ऊंचा उड़ानी है, बहुत ऊंचा उड़ानी है, इतनी के बादलों में चली जाए, सारी चरखनी खत्म हो गई। अब बच्चा कहता नहीं उतना अभी भी ऊपर नहीं दिया। बाप ने फिर तोड़ दी डोर, चलो हवा उसे ऊपर ले गई, बहुत ऊपर ले गई, पर ज्यादा देर रही नहीं, वो अगले गांव में जाके गिर गई। ऐसी कामयाबी चाहिए, ऐसी ऊंचाई चाहिए। मसीह के बगैर हर सक्सेस, मैंने कहा ऐसी है, मसीह के बगैर हर बरकत ऐसी ही है, मसीह के बगैर हर पोजीशन ऐसी ही है, और हर वो बरकत, हर वो चंगाई, हर वो पैसा जो बाइबल से बाहर से होकर आता है वो शैतानी है, याद रखिए। लेकिन हर वो बरकत, हर वो सक्सेस जो बाइबल के बीच से आती है वो परमानेंट है और वो हेवनली है। बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम में आज से सक्सेस आपको फॉलो करे, बोलिए आमीन। ये ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करे, ये ग्रेस आपकी लाइफ के साथ जुड़े और मैच्योरिटी आपका हिस्सा बने। बोलो आमीन। हाथ उठाकर बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ रखे हैं, इसी रोमियो 8 बाब की 7 वर्ष, बहन शादियां पढ़िए जल्दी से ऊंची आवाज में। रोमियो 8 बाब की 7 वर्ष को देखिए, रोमियो 8वां बाब उसकी 7वीं वर्ष को, कि बहन लोग आप पढ़ दीजिए। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है। आमीन। क्यों इसलिए कहा कि जिस्मानी नीयत खुदा की क्या है? बोलिए। और लिखा है क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। हम जिस नीयत में चल रहे हैं, हम जिस्मानी लाइफ में, मैंने कहा फिजिकल सेंसेस में चल रहे हैं, तो बाइबल क्या कहती है? ये दुश्मनी में चल रहे हैं, हम खुदा की दोस्ती में नहीं चल रहे। और सोचो जिस आदमी ने खुदा को अपना दुश्मन बना लिया तो फिर कितना खतरा मोल लिया अपने लिए। बाइबल कहती है गिरी हुई फितरत का ज़हनी महलान या रुझान मौत है। यहां पर सुनिए, जिस्मानी नियत हाल की तो लुत्फ अंदोजी हो सकती है, पर मुस्तकबिल की अबदी हलाकत है वो। अभी आप या मैं सोचिए, हम जिस्मानी लाइफ जी के, पेट शेक मार के और आगे पीछे फोन सुन करके बड़ा एंजॉय करते हो, मुस्तकबिल का क्या है? क्या है मुस्तकबिल का? अबदी हलाकत। और रात को भी हम बात कर रहे थे, अब हरून भाई को यकीनन याद होगा, एक मसीही कल का देखकर चलता है कि आज का देखकर चलता है? कल का देखकर चलता है। एक मसीही कल का देखकर चलता है कि कल मुझे कहां पर होना है, और उसकी आज की तैयारी करता है, आज से। और बाइबल ये कहती है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं, साफ लिखा है कि ये जिस लाइफ में हम चल रखे हैं, उसने कहा ये खुदा की दुश्मनी है। खुदा के दुश्मन मत बनिए। लाइफ को उतना लीजिए, दुनिया को उतना लीजिए जितनी जरूरत है। साधु सुंदर सिंह ने कहा अपनी एक बुक में, उसने कहा जब कश्ती दरिया पर चलती है तो पानी उतना लेती है जितनी उसकी जरूरत है, लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा ले तो वो खुद डूब जाएगी। उसने कहा एक स्पिरिचुअल इंसान, एक मैच्योर आदमी दुनिया को भी उतना ही लेता है जितनी उसकी जरूरत है। लेकिन मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा, शादी ब्याहों में आपको लगेगा, आपको नजर आएगा कि कौन आदमी कितना स्पिरिचुअल है। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि डीजे, मुझे याद है पादरी फिलिप साहब एक बार एक मंगनी पे गए तो पादरी से फिलिप साहब कह रहे थे
کہ میں منگنی پڑھنی سی تو نال ہی انہاں خسرے بلا لے تے کہندے صحیح میرا تسی صحیح جوڑ پایا انہاں دے نال اور میرے ساتھ بھی ایک بار ایسی تجربہ ہوا تو میں بھی انہوں نے پادری فلپ صاحب کی گل سنائی میں کہا میرا بھی صحیح جوڑ پایا تسی بائبل کے اندر یاد رکھیے ہم انہی چیزوں سے جانے جاتے ہیں. کیا نہیں لکھا؟ ناچ رنگ کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. ہم فخر سے لگاتے ہیں, بلانے والے گانے والے بلاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں, ناچتے ہیں. او بھائی, ایک اسپرچل آدمی کی خوشی منانے کا اور طریقہ ہے. اگر دنیا دار لوگوں کی طرح کریں گے تو اس نے کہا آپ پڑھ کے دیکھ لو غلطیوں پورا چیپٹر وہاں پر لکھا ہے, ناچ رنگ کرنے والے. اس نے کہا جادو ٹونا جھگڑے رگڑے سب کرنے والے, اس نے کہا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں لو جی ہن خوشی بھی نہ کریے تو نچ ٹپ کے تسی گیتاں تے کر لو بھائی, اوتھے بھی تسی نچ سکدے ہو. ایسا ہے کہ نہیں بولیے؟ پر وہ ناچنا اور ہے, یہ ناچنا اور ہے. یہ روح کے لوگ سمجھتے ہیں. بولیے آمین, ہاللویا. سو بائبل مقدس کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے, رسول نے کہا کہ تم میں اب بھی کیا ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, اور یہ تمہاری جسمانیت تمہیں جینے کے نشان ہے. مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے نا؟ تو وہ درخت کون ہے؟ بوٹے کی بات کی کہ ہماری بات کی؟ تو ہمارے پھل کیا امرود لگے گا, کیلا لگے گا, کیا ہوگا؟ ہمارے کام ہمارا پھل ہے, ہمارا کام. اور یہاں پر یہ لکھا ہے تم جیسے ہو ویسے تمہارے کام ہیں. اور اگر تم پر حسد اگا ہوا ہے, جھگڑے اگے ہوئے ہیں, اور طرح کے برے کام تمہاری لائف میں نظر آتے ہیں, تو اس نے کہا تمہاری لائف جسمانی ہے, اور جسمانی نیت کیا ہے؟ بولیے موت ہے. اور بائبل کہتی ہے چرچ میں آنے کے باوجود ہم اپنی فزیکل لائف سے باہر نہیں نکلے. ہم نے ابھی تک سوچا نہیں کہ یہ چیزیں کب کی چھوٹ جانی چاہیے, اور ابھی بھی یہ ساتھ ہیں. تو کیوں ساتھ ہیں؟ بولیے ان کو نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہماری لائف کے اندر فالتو سے ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ فالتو سے گئے تو وہ ہم سے کچھ چھین رہی ہے, وہ ہم سے کچھ الگ کر رہی ہیں. اور بائبل یوں کہتی ہے, یہ صاف لکھا ہے کہ اگر تمہاری لائف کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اس نے کہا ابھی بھی تمہیں دودھ پینے کی کیا ہے؟ بولیے حاجت ہے. دو خاندانوں کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بائبل کہتی ہے دونوں میں سے وہی لوگ سلیکٹ ہوئے جو اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی بڑھ پائے. ایک آخری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, یسوع مسیح کو ہماری فزیکل لائف سے زیادہ ہماری اسپرچل لائف کی فکر رہتی ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے بتائیے یسوع مسیح مرکز کی انجیل میں لکھا ہے ایک گھر میں تھے, ایک مفلوج ان کے پاس لایا گیا, پیرالائز آدمی. اور بتائیے یسوع مسیح نے اس کے گناہ کیوں معاف کیے؟ حالانکہ مسئلہ تو بیماری کا تھا. لوگ اس کو مسیح کے پاس اس لیے لائے, لکھا ہے چھت کھول دیا, چارپائی کو باندھ کر نیچے لٹکایا, اور یہ کہا اے خداوند جہاں معجزات کر کے اس کو بھی چنگا کر دو. اور مسیح نے اسے دیکھتے ہی کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسئلہ بیماری کا ہے, اور مسیح یہ سوچتے ہیں, اور مسیح کا طریقہ کار ہے کہ بیماری تو ایک علامت ہے, تو وجہ کچھ اور ہے, وجہ کچھ اور ہے. اور مسیح علامت کا ہی علاج نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیے کتنے بی پی کے شکار ہیں, کتنے شوگر کے شکار ہیں, تو اگر وجہ رہتی ہے تو بیماری تو رہتی ہے. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم ساری زندگی علامتیں کٹواتے رہتے, بی پی ہائی ہو گیا چلو 2-4 گولیاں کھا لو, اچھا پھر بی پی ہائی ہو گیا اور 2-4 گولیاں کھا لو. وجہ تو ہے اور بیماری بھی ہے. یسوع مسیح نے, بائبل کہتی ہے, اس مفلوج کو جب اپنے پاس دیکھا تو اس کی فانی حالت سے زیادہ اس کی ابدی حالت کا فکر کیا اور اس کی ابدی حالت کو سدھارا. ہم بیماری کا سوچتے ہیں, وہ ہماری اٹرنل لائف کا سوچتا ہے, ہمیشہ کے جیون کا وہ سوچتا ہے کہ اسے نرک میں نہیں ہونا چاہیے, اسے پاپ میں نہیں ہونا چاہیے. اور مسیح نے کہا اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. یہ ان کا عقیدہ تھا اور صحیح تھا. تو یسوع مسیح گناہ معاف کر رہا ہے. اور بائبل کہتی ہے یسوع مسیح جان گئے کہ یہ یقین نہیں کر رہے, تو وہ چیز جو نظر نہیں آتی کیسے پتا چلے گا؟ اس کی باڈی کو چھوڑ کر, اس کی اسپرٹ کو چھوڑ کر وہ پاپ چلے گئے. بائبل کہتی ہے اب یسوع مسیح نے ان کے سامنے وہ چیز رکھی جس کو وہ دیکھ سکتے تھے. مسیح نے کہا بیٹا اپنی چارپائی اٹھا کر چل اور پھر. اور بائبل کہتی ہے صحیح ہوا.
ऐसा ही हुआ। सोचिए, वो आदमी मसीह के पहले कहने से और दूसरे कहने से, दोनों में एक हालत नजर आने वाली और दूसरी हालत ना दिखने वाली, लेकिन मसीह दोनों हालतों को देखता है। हम में से बैठे हर एक शख्स की वो पर्सनल लाइफ से वाकिफ है कि नहीं वाकिफ? बोलिए, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं कई बार आपको कह चुका हूं, जितने पाप हम सीक्रेट में करते हैं हम ओपनली नहीं करते। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान तन्हाई में करता है और सबसे ज्यादा अजर भी तन्हाई का है। मसीह ने कहा अपनी कोठड़ी का दरवाजा बंद कर, वहां पर लिखा है कि मैं तुझे अजर दूंगा, इंग्लिश में है मैं तुझे अजर दूंगा ओपनली, कि लोगों के बीच में मैं तुझे अजर दूंगा। काम कहां पर कर रहा है? सीक्रेट में, तन्हाई में। और मैं ये कह रहा हूं, इसलिए अपनी लाइफ को सीरियस लीजिए। हम अपनी लाइफ को आसान ना ले। क्रिश्चियन लाइफ अपने आप नहीं बनती। क्यों बहन शादी अपने आप बनती? क्रिश्चियन लाइफ नहीं बनती अपने आप, ये बनानी पड़ती है लड़ झगड़ के। इसलिए तो रसूल ने कहा मैं इसे मारता और कूटता हूं, अपने जिस्म को, ख्वाहिशों को। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे, अपने सर को झुकाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अपनी रूहानी जिंदगी को इस तौर पर बनाइए कि हम यीशु मसीह के नाम में अपनी लाइफ के दोनों पहलुओं में बढ़ पाए। इस चीज के लिए खुदा से कोलो करार कीजिए कि खुदावन तेरे घर में होने के बावजूद, चर्च का हिस्सा होने के बावजूद मैं सारी जिंदगी डायपर और फीडर पे ना लगा रहूं, बल्कि अपनी उम्र के हिसाब से सॉलिड फूड की तरफ बढ़ूं और मैं जिम्मेदार क्रिश्चियन बनूं। हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाएंगे खुदावन की हुजूरी में। धन्यवाद जीसस, हालेलुया।